First of all, thank you so much. I think this is the second time I'm doing it. So I want you both to introduce yourself. I am advocate Sonal Singh Vadara, and that's my husband, advocate Sagar Pammal. Can we do it again? What is the learning of getting married? Never. What is the object of learning? What is the learning from our marriage? Like, what do you Never object her. तो क्या कर रहे थे अभी? हाँ तभी तो चुप हो गया ना धीरे धीरे सीख. शुरू करो. Okay, so I am advocate Sagar Pangal and that's my wife, advocate Sonal Singh Vadara. So both of us are practicing advocates in Supreme Court of India. तो आज आप आए हो, सबसे पहले तो आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने पर्सपेक्टिव, अपने व्यूज आपके साथ शेयर कर सकें. अभी जैसे हम जब बात कर रहे थे, आपने बताया कि you were senior. Yeah. So what is the story? No, it's an arranged marriage. Okay. The thing was, but I'm his senior, a year senior now. Okay. I graduated in 2018 and he passed out in 2019. It's an arranged marriage. It's Yeah, an arranged marriage. Anyhow, we both doesn't look लगता नहीं ना? लगता नहीं है, but है. नहीं लगता है. Fortunately, हाँ. But later it turned into a love story only before we got married. Courtship period was quite a love story for us. So how it started, like getting into law? I want to ask you first. Yeah. So I'll tell you, it was not a well thought decision. 12th tak to I was a commerce student. So I thought I'll get into CA and all of this. But I have been a very, outspoken person all my life. I had my own perspectives. And I come from a very small town in Haryana. It's called Adampur. And it's a place जहाँ पे ज़्यादा आपको लड़कियाँ पढ़ी लिखी भी नहीं मिलेगी. But my family specifically was very different. My No father, one is from the law. No one. I don't even think मेरे town में भी होंगे कोई नहीं. who has ever practiced in Supreme Court till date. So my father was very fond of advocacy. He always thought that I should become an advocate. But वो अपने thoughts और अपने dreams थोपना नहीं चाहते थे मुझ पे. And then I think जो childhood में कुछ चीजें जो मैंने देखी, one was a dowry death which I witnessed, and I think I was 7 years old जब मैंने वो लड़की को जलते हुए देखा अपने सामने. So that was a very horrific incident. So उसने that shaped a lot of my adult. Around what year? So This so must I be before 2006. no. I was not 6, 7 and No, 2000. 2000. It would be 2002 or 3. Okay. I can't remember specific year, but I still remember the grade I was in. I think I was in 2nd or 3rd grade at that Okay. time. And then I saw, because that was my neighbor. बिल्कुल exact मेरे घर के सामने वाला घर था. On balcony में she came running and she set herself on fire. And she ran to the balcony out of pain and she was screaming. And by chance I was going out to play. And then when I saw all of that, I was so traumatized. And later जो लोगों की बातें सुनते हो तुम कि वो क्या हुआ, and then I realized it was a dowry death. So that shaped lot of how I was. For a lot of time, I thought कि marriage एक बहुत ही बकवास चीज होती है life में. And then मतलब I was quite traumatized of this idea of getting married also. Okay. But then later when I got into That then time you were in somehow- school or college? I was in school. I was in school. I was 7-year-old I kid. was a Oh, kid. 7 years. I was a kid. Sorry. But that I really feel that made me very opinionated. I had my own voice entire time. Whenever I would see anything happening wrong, I would raise my voice. Even in colleges, when I was in my college, lot of things happened. Where I would raise my voice, I would have my own opinion. Maybe it was against the entire majority, but फिर भी I would raise my voice. That happened a lot of time. But then with time I realized, that advocacy is the perfect career path for me. But then again I bifurcated. After passing out from law school, I thought I'm meant for UPSC. Okay. Then I took 2 attempts. Then I thought तो I should be UPSC के ख्वाब कैसे आया फिर? UPSC के 2018 में आया.
2018 में I realized there were a lot of things जो कि कुछ सही ही नहीं चलता था इंडिया में. Then I thought I was very fascinated with Indian police service. Okay. So I always wanted to get into police. I always had that kind of mind where I can investigate things. When I see a thing also, मेरे mind में अपने आप ना बहुत investigating चीजें चलने लग जाती है. There would be this thing. I'm very imaginative. Very imaginative. So अपने आप मेरी imagination would go on कि ओ ये हुआ होगा ऐसे हुआ होगा. And then I thought it would be a very thrilling experience of my life if I get into Indian Police Service. But then kind of if I tell you मैं कर तो आज भी वही रही हूँ. I read the charge sheet. Charge sheet is made by the investigating agency which is police. उसके बाद मैं अब बस फॉल्ट्स निकाल रही होती हूँ कि पुलिस ने काम कैसे सही नहीं किया मोस्ट ऑफ टाइम. बट आई एम पार्ट ऑफ द सेम थिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू. बट देन आई थॉट कि इंडियन पुलिस सर्विस में मे बी मेरी वॉइस कितनी वैल्यू नहीं होगी जितनी एडवोकेसी में होगी. सो दैट्स हाउ फ्रॉम इंडियन पुलिस सर्विस से ड्रीम्स चेंज्ड इनटू दिस प्रोफेशन एंड देन हियर आई एम. How you start? So जैसा कि इन्होंने बताया, आई एम ऑल्सो द फर्स्ट जन लॉयर इन माई फैमिली. पहले कोई वकालत किसी ने की नहीं, कोई लॉयर था नहीं. मेरे दादाजी की बड़ी ख्वाहिश थी कि घर में एक तो हो ऐसा कि जो वकील बने, जो लॉ की पढ़ाई करे. सो आई वेंट टू सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे. हाँ, मैडम ने जिंदल लॉ स्कूल से किया, मैंने सिम्बायसिस लॉ स्कूल पुणे से किया. तो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन क्रिमिनल लॉज. साइड बाय साइड मेरी PhD अभी चल रही है क्रिमिनल में. और इसके अलावा आई हैव रिटन बुक्स ऑन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, दैट इज क्लैड, जुडिशरी और इन सब के लिए मैंने बुक्स लिखा. और इसके साथ साथ जब वहाँ पे था, पूना में था, तो CID महाराष्ट्र में काम किया. मैसेज में रहते जब CID महाराष्ट्र में काम किया तो बड़ा फैसिनेटिंग काम रहता था. DGP साहब के साथ मेरे को उन्होंने रख दिया. तो क्राइम सीन्स पे जाते, जो मर्डर सीन्स होते थे, जो रेप सीन्स होते थे. This is a sort of internship. Yeah, this was a kind of internship, but वो internship like 6 months की थी. तो एक तरह से सीधा DGP साहब के साथ काम करने का मौका मिला. तो इस तरह से फिर अब तो प्रैक्टिस ही है, आगे पीछे हर. Where you were born and brought up? I belong to Rohtak. Rohtak is a small town, small district in Haryana. तो मैं वहाँ के एक मायना गांव से आता हूँ. मैं छोटा सा गांव है मायना, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. It's not that much far away from here, but yeah, हरियाणा में आता है. शुरुआत में कैसे रहा? जैसे आपने बोला ना कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ. गांव से जब आप शहर में आते हो ना, अभी तो चलो आपने बहुत कुछ देख लिया. शुरू में चीजें कैसे होता है कि हर चीज दिस मेट्रोपॉलिटन कल्चर, अपने आप से जूझना, चीजों को समझना और परखना. देखिए सर, उसमें काफी डिफिकल्टीज रही, ऐसा नहीं कहूँगा. क्योंकि देखो, जो मेहनत हमने करी वही हमारे माँ बाप ने करी. हमको यहाँ तक आगे पालने पोसने में, बड़ा करने में, एक हमको इतना एक एक्सपोजर दिखाने में कि भाई असली जिंदगी वो है और तुम्हें असली जिंदगी में जब कदम रखोगे तो उन सब चीज़ों से जूझना भी है. तो इसमें एक माँ बाप का एक बहुत अहम रोल रहा है. और माँ बाप के साथ साथ मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनका भी मुझे काफ़ी एक अच्छा सहयोग मिला, जिससे मतलब मैं इन सब चीज़ों को कोप अप कर पाया. और एक छोटे से टाउन से आना, जहाँ पे यार हमारे वहाँ पे तो ना वो उस टाइम पे लैपटॉप वगैरह भी यूज़ नहीं करते थे. और जब मैं एकदम से सिम्बायसिस में गया तो वहाँ पे पूरा एकदम मेट्रोपॉलिटन कल्चर, मुंबई, बैंगलोर, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अच्छे स्कूल से पढ़ के आ गए. मैं एक नॉर्मल से स्कूल से पढ़ा. तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू कोप अप इनटू दैट एनवायरनमेंट. लेकिन सीखे चीज़ों को, वो किए, और वॉरियर तो रहे हैं यार. तो जीत के ही आगे निकले. और देखो जीतते ही रहेंगे. आई थिंक वो ना स्मॉल टाउन से जो लोग बिलोंग करते हैं ना, उनमें एक फायर होती है. एक बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ भी बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन इज द राइट. और कुछ कर गुजरने की तमन्ना, वो जो होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है छोटे शहर के. उसमें बहुत पैशनेट होते हैं. जब हम एक बड़े शहर में आते हैं, दिस ऑल वी हैव इज द पैशन. व्हेन आई केम टू दिल्ली आई न्यू नो वन. मतलब आई व्हाट डू यू हैव, पैशन और होप? होप एंड पैशन दोनों को साथ में लेके चले. A very positive hope, a very positive mindset, I think is very important, specifically in litigation. Because जितने myths litigation में आपको मिलेंगे, I don't think कोई और profession में मिलेंगे. Because इस profession में तुम्हें यही तो नहीं पता in next 5 years में तुम कहाँ होगे. Yes. Because luck बहुत ज़्यादा favor करता है litigation. और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो एक मिथ और जो एक ये फैलाई गई है ना मार्केट में कि जब तक आप 5-10 साल प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक केस आना स्टार्ट नहीं करोगे. दिस इज अ कंप्लीट लाई.
ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, आप लोगों को अप्रोच करोगे, आप किसी एक क्लाइंट का काम बहुत अच्छे से करके दोगे तो वो क्लाइंट 3 या 4 लोगों को बताएगा और कहीं ना कहीं से काम आएगा। तो वो जो पुरानी धाराएं थी, परंपराएं थी कि आप जब तक 10 साल तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई सीनियर नहीं पकड़ोगे, ये सब देखो, सीनियर के साथ काम करो, स्टार्टिंग में काम सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन सीनियर के साथ साथ आपका खुद का ब्रेन, आपकी खुद की मेहनत, वो भी काम आएगी एट द एंड ऑफ द डे। एंड वो ऐसा नहीं है कि 10 साल तक प्रैक्टिस नहीं चलती। भाई साहब 2-2 साल में प्रैक्टिस चलती हुई देखी और 2-2, 3-3 साल में मैंने इतना अच्छा ग्रो करते हुए देखा है कई एडवोकेट्स को, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। You mean to say the verbal promotion? जी, जो हम नॉर्मली करते हैं ना, that is also very important. वर्बल प्रमोशन प्लस आपके काम से प्रमोशन, along with the amount of work you do, the kind of work you do. For example, I always have this saying, कोई आपको 100 रुपए दे स्टार्टिंग ऑफ लिटिगेशन, आप 500 का काम करके दो, he will make sure कि you have another 2 new clients and those 2 will make sure you have another 4 new clients. That's how you succeed. अगर आप स्टार्टिंग में if you only look at the amount of money paid, it's वही बात है, अगर आप मुर्गी को एक बारी में काट दोगे, you have to focus on the eggs, I think, not on the hen. और हमेशा, that's the perspective. हमेशा अपने काम में, कोई भी काम करो, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस की, वकालत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम आप करो, हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा अपने काम में रखनी चाहिए और फॉल्स होप्स किसी को नहीं देने चाहिए। अगर आपका ये काम 2 तारीख में हो रहा है, 3 तारीख में हो रहा है, 2 हेयरिंग्स में हो रहा है, 3 हेयरिंग्स में हो रहा है, 5 हेयरिंग्स में हो रहा है, तो क्लाइंट को पहले से ही बताओ कि सर देखो इतना टाइम लगेगा, इतना फीस लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, ये सारी चीजें एक ट्रांसपेरेंट होकर बताओ, ना कि बजाय उसको फॉल्स होप दे देके कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लान ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ही नाम खराब होता है, राइट? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे जब व्हेन आई डू द पॉडकास्ट विद ब्यूरोक्रेट्स, मेनी ऑफ टाइम्स मैं इसको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हाइप नहीं कर रहा हूँ, बट समटाइम्स पीपल से, एज यू बोथ अ क्रिमिनल लॉयर, कि sometimes criminals are also talented and some not talented, they also have brain. जो हमारे एक बेसिक चीज होता है ना, criminals मतलब अनपढ़ होंगे, ऐसे होंगे. What's your take on that? I'll tell you, cyber fraudsters, if you see, because जितनी तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, I bet you और कोई क्राइम ही नहीं बढ़ रहा उतनी तेजी से on daily basis. In last 6 months, the ratio if you see, जो last 6 months पहले जो साइबर क्राइम होते जो up, that's a huge hike in that. So I'll tell you, वो इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने ब्रेनी होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं, समटाइम आई एम अम्यूज्ड. टुडे ओनली आई वाज टेलिंग सागर, एक साइबर फ्रॉडस्टर ने क्या किया, सो उन्होंने 1000 सिम रिकवर किए किसी से, एंड व्हेन दे आस्क्ड कि 1000 सिम होना एंड ऑल ऑथेंटिक सिम्स, आई से कहाँ से मिले होंगे, सो व्हाट दे डिड इज, यहाँ के लोग नॉर्थ इंडियंस, दे वेंट टू साउथ इंडिया और उन्होंने स्पेसिफिक छोटे टाउन्स और विलेजेस को टारगेट किया. उन्हें बोला कि हम आपको कप्स देंगे विलेजेस में विमेन्स को, कि हम आपको टी कप्स का पूरा वो देंगे, एक पैकेट जिसमें 6 कप्स आएंगे. इन रिटर्न आपको क्या करना है, ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें हम दे रहे हैं, आपको अपना आधार कार्ड प्रोवाइड करना है और बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना है, और व्हाट ऑल यू नीड फॉर अ सिम. तो वो वैसे एक सिम करते और उन्होंने 1000 सिम कुछ 2 गांव से या 3 गांव से लिए, एंड देन वो सिम यूज हुए, आगे बेचे गए थाईलैंड में, बिकॉज नॉर्मली साउथ ईस्ट एशिया इज द हब आज के टाइम साइबर क्रिमिनल्स के लिए. द बिग फिश सेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया, आराम से वहां बैठे 1000 सिम खरीदे, वो सिम्स यूज किए गए मल्टीपल फ्रॉड्स करने के लिए. हजारों के करोड़ के स्कैम हुए इंडिया में, पीपल वर ड्यूप्ड, एंड आई टेल यू, सो दे यूज दिस सिम इन abroad. उन्होंने यूज नहीं किया, वो तो सिर्फ सिम प्रोवाइडर थे. उनको तो एक सिम खोलने का 100 रुपया मिलता था, 100-150 ऐसे रुपया मिलता है एक सिम खोलने का. उनको पता भी नहीं कि सिम का आगे यूज क्या है. अब वो सिम तो आगे प्रोवाइड कर देते हैं. अब वो आगे जो बिग शार्क्स, एक्चुअली जो बिग शार्क्स बैठी हैं, वो उन सिम्स को यूज करती हैं साइबर फ्रॉड कमिट करने में. अब समझ लो आप, पैसा बाईपास कैसे हो रहा है, अकाउंट किसी और का, खोल कोई और रहा है, सिम किसी और का जा रहा है, फ्रॉड कोई और कर रहा है, और पैसा जा कहीं और रहा है. कैसे ट्रैक करोगे? जब पुलिस ट्रेस कर रही है, दे ट्रेस टू एक जो लेडी, ओल्ड एज लेडी बैठी है घर के बाहर, शी इज डूइंग राइस साहब, उसके नाम पे 200 करोड़ रुपए ड्यूप हुए हैं, उसके अकाउंट में आए हैं, एंड शी डज नॉट इवन नो एनीथिंग. उसको पता ही नहीं बेचारी को. तो इमेजिन द क्रिएटिविटी ऑफ दिस क्रिमिनल्स. So I am very amazed इनकी साइबर क्रिमिनल्स की, if you see तरीके, जिस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं, and specifically even murderers, जिस तरीके से sometimes they commit crimes, it takes a talent of people to crack those crimes also, you
you know. आपने वो मूवी देखी होगी शोले? पहले की मूवीज में कैसे होता था, एक दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे, पहले की मूवीज में कैसे होता था कि गांव में डाकू आते थे, डकैती डाल रहे हैं। आजकल ये फाइनेंशियल डकैती डाल रहे हैं, समझ रहे हो? अब वो टाइम तो गया, इनफैक्ट आगे जाके ये डकैतियां कमी हो जाएंगी, सीधा सब कुछ लोग सबको टारगेट करेंगे ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशंस, राइट? अब शोले इज हैपनिंग थ्रू फोन्स, वो फोन से आएंगे। एंड आई टेल यू, ये जो लोग हैं स्पेसिफिकली जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये हाईली एजुकेटेड लोगों को ड्यूप करते हैं। इमेजिन नॉट एवरीवन, अब हाईली एजुकेटेड, हाईली प्रोफेशनल, मोस्टली इनके हिट लिस्ट में कौन है आज के टाइम? टॉप डॉक्टर्स। अच्छा। And most of our clients are top professionals. But why it isn't? Even lawyers are being duped. For the finance. Because they want to invest. They lure them with such good profits, उन्हें लगता है, and everything seems so real. कभी वो CBI बन जाते हैं, कभी वो ED का छापा मार रहे होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, कभी तो they target all professionals. ये भी हो सकता है भीम जी, कभी आपको है ना बैठे बैठे ऐसे कॉल आएगा और सीधा आपको बोलेंगे मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, अभी है ना मुंबई के कस्टम्स वालों ने हमने यहाँ पे आपके नाम पे 1-2 फेक पासपोर्ट, एक गन और कुछ ड्रग्स आपके नाम पे आपके घर पे कोरियर हो रहे थे, डिलीवर हो रहे थे। ऐसा भी आपको कोई ना कोई अभी चल रहा है, ये तो पुराना, I'll tell you, ये पुराना होता है। Did the same thing with one IPS officer. वो अभी Instagram पे भी चल रहा है, जो आप बता रहे हो ना सर, वही हम चल रहा है। I think वो ट्रेंड 4-5 महीने पहले पास हो चुका है, and everyone knows. अब तो ये लोग अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि एक्चुअली ये इसका भी लाइफ स्टाइल बहुत कम है आज के टाइम पे, ये फ्रॉड्स भी उनको भी बहुत जल्दी, वो भी ट्रेंडिंग ही चल रहा है, हर 2-3 महीने में अपडेट करते रहते हैं, वो भी अपडेट। इंस्टाग्राम से जल्दी इनके फ्रॉड करने के तरीके के ट्रेंड्स बदल रहे हैं। अब ओटीपी वाला फ्रॉड कौन करेगा? आप कोई बेचारे कोई इलिटरेट भी नहीं बताएगा किसी को ओटीपी, क्यों इसको पता है ऐसे फ्रॉड हो सकता है। अच्छा, आपने शोले के बारे में 2 चीज बोला, दैट इज वन इज पावर सेंट्रिक गेम, सेकंड इज यू नो द कॉमन मैन। तो मैं दोनों को अगर जोड़ के एक सवाल पूछूं, विच इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आई थिंक हर कोई पूछता है, जैसे आम जनता में ये चीज बात करते हैं कि जो आम जनता है उनको 100 मोस्ट ऑफ द टाइम न्याय नहीं मिलता है। लोग ये बोलते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास ही कानून है। वास्तव में क्या है? कभी कभार लगता है खुद को कि हाँ शायद नहीं मिलता है। देखो, मैं इसमें ना अपनी जो न्याय प्रणाली है, जो जस्टिस सिस्टम है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करूंगा और वो करना ठीक भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देखो हाँ, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास संसाधन जब बढ़ जाते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर ज्यादा बढ़ जाता है दूसरे पार्टी तक पहुंचने का, अपने केस को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करवाने का, या थ्रू एनी अनयूजुअल मीन्स। ठीक है, तो वो तो चीज एक देखो रहती है, उस चीज में तो है, बट अपने अपने चीजें हैं, अपना अपना वो है। But I think I'll contradict with Sagar. If I'll tell you the reality, amount of practice I've done, जितने मैंने cases अभी तक handle किए हैं, so अगर आपके पास पैसे हैं, तो by that mean I'll tell you कि justice system तुम्हारे लिए favorable कैसे होगा। I'll tell you, not in terms of corruption. but मैं बोलना नहीं चाहता अभी, on record है। Not in terms of corruption. I mean कि अगर तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे, तुम उतने ही अच्छे advocates को hire कर पाओगे। And more you pay, better services you get. It's as simple as that. जितना जो ज्यादा पे करेगा तुम्हारे केस पे, उतना ही ज्यादा टाइम और अटेंशन दिया जाएगा by good advocates, and they make sure that you get some relief in your hand by hook or by crook. It's all about knowledge we showcase in front of the judges. So it's not, you know, और जिनके पास पैसे नहीं है, it's very unlikely कि you know they can approach lawyers। और pro bono आपकी किस्मत कितनी बार काम करेगी कि एक अच्छा advocate pro bono करेगा, because वही बात, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? So it's like that. So I think जो जितने पैसे तुम्हारे पास है, उतना जल्दी तुम्हारे पास justice होगा, because you will hire good advocates and they will make sure कि whatever you are seeking court में वो आपको मिल जाए। अभी अपने डॉक्टर्स की बात की है, तो मैं कुछ दिन पहले एक कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें दिखा रहा है कि एवरीबडी इज नाउ इन अ रैट रेस टू अर्न मनी। जैसे यू नो बोलते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में दे आर जस्ट अर्निंग मनी। जैसे आप उस टाइम पे बोल रहे थे कि एक नॉर्मल ब्रेन की ट्यूमर को कभी कभी कैंसर बता दिया जाता है ताकि पैसे, देयर इज अ चेन ऑफ यू नो मनी इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड ऑल। डू यू समटाइम्स थिंक दैट कि ये प्रोफेशन में भी एक रैट रेस चल रहा है पैसे कमाने का? देखो, काफी हद तक है ना, वो डिपेंड करता है एडवोकेट टू एडवोकेट। अब कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जो
थ्रू एनी मींस सिर्फ बताया ना जैसे मैडम ने कि पूरा मुर्गी जो है जो एग्स पे फोकस नहीं करते, सिर्फ मुर्गी पे फोकस करते हैं, एक ही टाइम पे क्लाइंट को काट दो, वो गलत होता कुछ है। लोगों का होता है दे जस्ट वांट टू ग्रैब एक बारी में मनी एक से एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट दैट क्लाइंट विल नेवर कम टू यू, दैट क्लाइंट विल मेक श्योर अगर कोई भी किसी से कुछ भी पूछता है कभी कि एडवोकेट्स के रेफरेंस, वो क्लाइंट कभी भी तुम्हें रेफर नहीं करेगा कहीं और। सो वो वही है, मतलब रैट रेस तो बहुत ज्यादा है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पीपल हु वांट्स टू प्रैक्टिस वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। It's also a competitive sector, right? very Very competitive, competitive. very competitive. It's not easy like earlier days. Because nepotism नहीं, भी ऐसा तो नहीं। उतना ही ज्यादा है ना इस प्रोफेशन में। How nepotism? नेपोटिज्म तो सबसे ज्यादा या तो बॉलीवुड में या उसके बाद बॉलीवुड से भी advocacy में। ज्यादा नेपोटिज्म। हाँ। अच्छा, बॉलीवुड में तो ये है ना कि आप कैमरे के सामने आ गया, अगर आप में एक कुशलता है, आप में वो स्किल्स है। So imagine अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर जज रहे हैं of high court or any even district courts or supreme court, so how easy it is for you to approach this profession. आपको आपके पास ऑलरेडी एक सेटअप ऑफिस होगा, आपके पास एक मुंशी होगा ऑलरेडी सेटअप, आपके पास ऑलरेडी केसेस के रेफरेंसेस होंगे बिकॉज यू कम फ्रॉम अ लीगल फैमिली काइंड ऑफ, आपके फादर और ग्रैंडफादर के फ्रेंड्स भी एडवोकेट्स होंगे। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प ऑल यू हैव टू डू इज मेक वन कॉल टू अंकल एंड आस्क फॉर अ यू नो व्हाट डू आई डू इन दिस केस, बट इमेजिन अ पर्सन हु हैज नो वन in this profession, who has no reference in this profession, how does that person succeed? But I'll tell you, वो भी succeed करता है। बट एक चीज मेरा रियलाइजेशन है, शायद आप लोगों के भी लाइफ के अलग एक्सपीरियंस होगा, जो आप कह रहे हो मैं मानता हूँ इस बात को, जिसके पीछे सपोर्ट है he gets everything in a platter, Yes, okay? everything. बट आपको लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो सक्सीड करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सक्सीड कर जाता है जो जीरो से हीरो बनता है? I'll tell you जीरो से वाला क्यों करता है, because वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहता है। We both were out of our वो डर comfort खत्म zone. हो जाता है ना कहीं ना कहीं, Correct. We होने have का और done- हारने का डर खत्म हो जाता है। आप जो भी बात बोल रहे हो उससे मैं वो रिलेट कर पा रहा हूँ। कौन सी मूवी आई थी रणवीर सिंह की, जिसमें वो कहते हैं ना कि जहाँ से हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ से जहाँ से हमारे सपने खत्म होते हैं, वहाँ से इनके सपने शुरू हाँ, होते हैं, ऐसा कुछ था ना? हाँ, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। जहाँ से हमारे सपने शुरू होते हैं, वहाँ जहाँ से हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ पे इनके सपने He is a Bollywood fan. ऐसा ही कुछ था भी, वो नहीं हो पा रहा। तो वही है, नेपोटिज्म इस फील्ड में है, काफी हद तक है। जब आपके अगर फादर ग्रैंडफादर रिनाउंड एडवोकेट या जज रहे हैं तो 500 फाइल्स आपके पास ऐसे ही पड़ी हैं। आप जिस दिन प्रैक्टिस में आ रहे हो उन 500 फाइल्स पे काम करना चालू कर दो, आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही चल पड़ेगी। यहाँ जमीन से केस उठाना पड़ता है, एक एक दिन मेहनत करनी पड़ती है, अपना खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, बट ठीक है। But I think it's a blessing in disguise कि Yes. कोई हमारी फैमिली से लॉयर प्रोफेशन में नहीं था, because I don't think मैं उतना कंफर्ट जोन से बाहर आती जितना मैं अब आई हूँ। बट लॉ प्रोफेशन में भी तो आई थिंक आज जो कोई रूल कर रहा होगा, देयर आर पीपल जो जीरो से हीरो बना होगा। बहुत है, बिल्कुल बहुत है। If I get to remember, ज्यादातर वही लोग हैं जिनके जो फर्स्ट जन थे, who has made it to the top, because वो हमेशा से they know, because they started, अगर कोई कुछ भी build करता है from zero, they know the value of that. अगर किसी को प्लेटर में मिलता है, I won't say कि सभी प्लेटर वाले are not doing great, they also do the equal amount of hard work, but it's just you know जो जीरो से build करता है, that person has more value for whatever they have built in those amount of years. अभी सर ने एक चीज बताया था कि जिस चेयर में अभी तुम बैठे हो, इस चेयर में यू नो काफी डॉक्टर्स भी बैठे हैं, काफी क्रिमिनल्स भी बैठे हैं। मैं ये सवाल आपको पूछना चाहता हूँ, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन बीइंग अ फीमेल व्हेन यू मेट अ क्रिमिनल और सो कॉल्ड यू नो टिपिकल क्रिमिनल, द मेनस्ट्रीम क्रिमिनल, हाउ वाज योर रिएक्शन? So my reaction was sometimes I feel sad for getting bail of these people. I'll tell you why. कभी कभार वो कहते हैं ना, because we are females, हमें एक extra emotions होते हैं. So there was this person, I got a murder bail, okay, and then उसकी wife made sure every time she would be very sad जब भी next date मिलती थी and we won't be granted bail, but finally we were granted bail. And then बाहर आने के बाद she made a call to me 2 months after कि मैडम इनकी बेल कैंसिल करा सकते हो क्या आप? And she was crying and I was like why do you say so? She said कि उन्होंने मुझे इतना मारा है, I'll just send you a picture. And when she sent me the picture, I was traumatized because उसने उसको इतना जानवरों की तरह मारा था कि मैं देख भी नहीं पा रही थी उस फोटो को. And entire day my mood was spoiled कि कुछ लोग दरिंदे होते हैं and वो अगर जेल के अंदर रहे उतना ही बेटर है. लोग सुधरते नहीं हैं। कुछ नहीं सुधरते हैं.
सब कुछ का माइंडसेट ही इतना ज्यादा, बिकॉज व्हेन यू किल अ पर्सन, आपके अंदर जो सेंसेस होती है ना, जो किसी के लिए सिंपैथी होती है, जो फियर होता है, वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है. सो वंस यू किल अ पर्सन, दूसरी बार मर्डर करते वक्त या तीसरी बार मर्डर करते वक्त, उसके लिए इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रोसीजर, उसको कुछ फील नहीं होता है. सो वो रियलाइज किया मैंने क्रिमिनल से बात करते वक्त कि दे डोंट हैव सिंपैथी, दे डोंट हैव इमोशंस एट ऑल. उनमें सिर्फ एंगर होता है और हाई लेवल ऑफ एंगर होता है, दैट दे कैन डू एनीथिंग व्हेन दे आर एंग्री. सो वो आई हैव रियलाइज्ड. यू शुड थैंक मी कि मैं possessive नहीं हूं. You're really not possessive. I'm not possessive. I'm very protective, but not possessive at all. Seriously. बट एक ही चीज है जिसमें मैं शायद सस्पिशियस नहीं होती हूँ, दैट्स माय हस्बैंड. अदरवाइज तो ऐसी कोई चीज नहीं है मैं ये जिसमें आई एम पूछने नॉट वाला था. सस्पिशियस. अभी आपने जैसे बोला ना, जैसे आपके प्रोफेशन में ये चीज होता है ना, कई बार जब मेरे को भी आजकल कई बार लगता है, तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स से कि यार हर चीज में तो ऐसे शक की नजर से क्यों देखता है. पर्सनल लाइफ में ये इफेक्ट होता है कभी कभार, शायद सबकॉन्शियस माइंड में. आई डोंट नो, मतलब आई नेवर वीडियो कॉल सागर, which is very मतलब ये भाव होता है, never video call. So we have realized, और ये ना सेट ऐसे नहीं था कि मैं करूंगी नहीं, but after some months I realized कि I'm not at all suspicious when it comes to my husband. Otherwise I'm very suspicious. और हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं आने देते. तो प्रोफेशनली अगर सस्पिशियस होते भी है केस स्टडीज करने में और सब करने में, थैंकफुली टच वुड पर्सनल लाइफ में नहीं आने देते. कभी एक पर्टिकुलर केस में आप दोनों लड़े और दोनों ऑपोजिट साइड में? हाँ, कौन सा जनरली जो म्यूचुअल डिवोर्स केसेस होते हैं उसमें तो हम But दोनों ऐसे ही होते mutually हैं. तो वो भी both are agreeing on that thing. मतलब नहीं, we have never been each other's opponent. Opponent कभी नहीं. opponent. म्यूचुअल डाइवोर्स में समटाइम वी हैव रिप्रेजेंट. म्यूचुअल डाइवोर्स इज जहाँ पे दोनों ही पार्टीज वांट्स डाइवोर्स. सो हस्बैंड को सागर ने रिप्रेजेंट कर दिया, वाइफ को मैंने. वो दोनों ही म्यूचुअल कर रहे हैं, तो वकील भी म्यूचुअली चलते हैं उसमें. बट अदरवाइज वी हैव नेवर कॉन्ट्राडिक्टेड ईच अदर इन द कोर्ट्स. ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत दिन से था, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे. बट यू नेवर नो if the opportunity comes, but then there would be this conflict of interest तो हो ही जाएगा, because he'll get to read my files, my notes. अभी कितने साल हुए आप लोगों की शादी में? अभी कितने साल हुए आप लोगों की शादी में? अभी almost 9 months. 9. Not even a year. A year of courtship also. So almost it's been 2 years of knowing each other. 2 साल. अभी 9 months में लड़ाई होती है? यार डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ तो नहीं ये तो टेक्निकली खेल रहे हैं. तो डिसएग्रीमेंट्स तो हर रिलेशनशिप में होते ही है. But I think no, Sagar. Why you sugar coating it? That's reality. ऐसा कोई relationship नहीं है where जहाँ पे लड़ाई नहीं होगी. अगर लड़ाई नहीं होगी तो फिर थोड़ा. वहाँ तो आप जीतते ही नहीं होंगे कभी. But I'll tell you one problem. 2-4 बार तो जीता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है. नहीं Sagar. I'll tell you one problem of two advocates marrying each other. कई बार हम ये भूल जाते हैं कि we are not in court. I remember everything. अच्छा, घर पे ऐसे होता है? हाँ, so when we are arguing, I am like 1 second. I remember on that day, this day you said this, and he also remembers very clearly. क्योंकि हमारा profession ऐसा है, we remember things very clearly, and we are so good with facts. कि दोनों का ही ना, then we have to settle in. ये court नहीं है, ये घर है. So let's just agree to disagree with each other. अब यहाँ पे तो किसी जज साहब को भी नहीं बुला सकते. There's no one judge also. हाँ, to decide. कि आगे डिसाइड कर दो भाई. वहाँ तो at least judge साहब होते हैं. To say कि you are right and you are wrong. Here there's no one. What is the disadvantage of marrying each other of the same profession? Is there any disadvantage? I'll tell you the biggest इस सर को बोलने disadvantage. दो. नहीं कर दिया चालू आपने. You will sugarcoat it. I'll tell you the reality. क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे हो आज गया आपको ना. मौका नहीं मिलेगा. प्रॉब्लम मुझे हो रही है इसलिए I'll tell you. Please tell. So advocacy never stops. Okay. Personal life में भी. There will be time जब 10:30 बज रहे हैं. You want to end the day. You have come back home, but you have your own son in the house. Who will ask you what has happened in that case? What is to be happened tomorrow? Has that But been drafted? just now you said that you are not possessive, you are protective. I think that time he's protective. हाँ, maybe you can say. Maybe, but that's what I want to end my day. I don't want my boss to come to my house. But my boss is sitting. My boss knows I'm not drafting, and it should be done today. तो आज मैं काम नहीं कर रही हूँ. My boss knows everything. So that's the disadvantage.
you know, because he's also my office partner. चलो So, खैर ठीक है, कोई नहीं, चलता रहता है सब चीजों के अपने एडवांटेज। Recently, I saw one of the interview of a Hollywood director. तो उसने बड़ी एक अच्छी पॉइंट बोला। तो उनको पूछा कि ऐसे कभी दिन हुए कि आप घर में आपकी कलेश हुए, ठीक है, एंड देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो उसने बोला मेरे हर इंपॉर्टेंट डे पे पहले तो कलेश होता है, और मैं यूज्ड टू हो गया हूँ कि उसके बाद भी मैं वहाँ पे 100% दिया हूँ। यार आप कुछ और बातें करो ना, प्लेस को इतना really. So, but that has happened. We always disagree most of time because we both are very opinionated. You know, we both have different perspectives almost 99% of the time. But then somehow we merge into coming to a one single decision. Okay, fine. You know, I think कुछ pros इनके हैं, कुछ cons, and then we decide. But हमेशा there is always, you know, some kind of discussion. बट ठीक भी है ना, आधी केस के आर्गुमेंट्स तो घर पे रेडी हो जाती हैं, तो कोर्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, प्रैक्टिस हो जाती है पूरा। एंड वही है हमारी जो, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो हमारी जो 90% बातें होती हैं वो बातें भी कोर्ट से रिलेटेड होती है, राइट। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ और ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं मिलता, विच इज वेरी फाइन, विच वी फील्स दैट वी आर टचवुड, वी आर लकी। क्योंकि अब देखो वही बात है, जो आज के दिन मैं ये चीज देख रहा हूँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में जिन्होंने शादी करी है, अब उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि द हस्बैंड वर्क्स इन सम अनदर कंपनी, वाइफ का वर्किंग जॉनर ही कुछ अलग है, तो वो उसकी चीजें नहीं समझ पाता, वो उसकी चीजें नहीं समझ पाता। बट सर कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि ऑफिस की बातें घर पे ना हो, जो कि मैं चाहती हूँ। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो अलग अलग शादी के वो खुश है। You are right. ये मैं चाहती हूँ। नहीं, आज सुबह ही मैंने एक फ्रेंड को पूछा, उसने यही चीज बोला मुझे। हम लोग इसी पे डिस्कस कर रहे थे, वो कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ कि ऑफिस की बातें घर पे नहीं हो रहा है। उन दोनों का अलग अलग प्रोफेशन है। अच्छा, हमारा भी इतना सच कुछ नहीं होते। Pros or cons, मतलब see I'll tell you, let's not set a picture which is not that true, ठीक है। मेरे को वो ideal picture नहीं चाहिए, because I'll tell you बहुत लोग होंगे will marry advocates and then they'll face some hardship, and but people should know the real picture, you know, and it's a problem कई बार you don't like it, because imagine your boss is with you 24/7, that boss knows you can't hide anything. So just imagine that. Now you can go home and lie to your boss that okay, that's done, half done, but you can't lie to your husband. He knows how much it's done or चलो not. ओके मैडम, नोटेड, आज से नहीं होगा, ठीक है। लेट्स कम टू योर हस्बैंड। आपने जब आप बन गए हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो, ये होता है कभी थोड़ा तो जोश आता है, यार मैं तो बन गया, वकील साहब मेरे को रास्ते में रुकवा के दिखाए, ये वो। और कभी कभार लॉ तोड़े हो आपने? यार देखो लॉ तो हाँ तोड़े तो बहुत है, ये तो बहुत तोड़ती है। ये सीट बेल्ट नहीं लगाती सर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप पे डाल दिया। सीट बेल्ट नहीं लगाती, मैं कह के परेशान हो गया। कई बार पुलिस वालों ने पकड़ा भी है, फिर बताना ही पड़ता। नहीं वैसे देखो जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वी आर एजुकेटेड लॉयर्स, हम कभी ऐसे रोड पे पूरा वो नहीं दिखाते, जो जहाँ पे दिखाना होता है वहाँ पे दिखाते हैं। और लॉज तो देखो कहीं ना कहीं टूट ही जाते हैं उन्हें रेगुलर बेसिस, Because इतने सारे laws है जिसके तो नॉर्मल लोग भी अवेयर नहीं होते। आप लॉज के हिसाब से चलोगे ना तो शायद अभी आप अपने घर से यहाँ तक ऑफिस तक आए हो ना, तो आपने भी कहीं ना कोई लॉ तोड़ा होगा। क्योंकि अगर प्रॉपर टिपिकल बात की जाए तो चाहे मोटर व्हीकल सेक्स से लेके हम किसी भी चीज की बात करें, आप इतने बाउंडेड हो इन लॉ कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठते हो। आप लॉयर हो, जवाब को घुमा दिया। पता है नहीं मैंने जो पूछा है। हाँ कर लेते हैं कभी कभी तो। चलो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि कौन सा किया है। हाँ थोड़े तो है यार, काफी थोड़े हैं। बट वो एक आता है अंदर, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप जब बन गए हो ना तब एक तो अंदर आता है, अरे यार, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है ना कि बीइंग एन इंडियन या बीइंग अ कॉमन मैन, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो आवर राइट्स, है ना, और हम डर जाते हैं, हम पहले ही सेटलमेंट पे आ जाते हैं, नीदर देन अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन क्या और हम क्या कर सकते हैं। उस जगह पे अपने आप को खड़ा होकर लगता है कि यार जो आसपास के 10 लोग हैं उनसे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बिल्कुल उस टाइम पे पावर फील होता है, उस टाइम पे जो हमने पढ़ाई की है, जो एजुकेशन, जो एनलाइटनमेंट खुद को किया है, उस चीज़ का हम फायदा उठाते भी हैं। क्योंकि हमने ये जो किताबें रखी है ना सर पीछे, इट्स नॉट दैट इजी। जब ये पढ़ने पढ़ते हैं ना, पूरा बहुत रातें काली की है जी ये सब पढ़ने में और वो सब करने। तो देखो थोड़ा सा पढ़ाई तो अभी भी चल रहा होगा। पढ़ाई तो ताउम्र चलेगी, बुढ़ापे तक चलेगी पढ़ाई तो।
लॉ में पढ़ाई, लॉ और डॉक्टर दो ऐसे प्रोफेशन हैं इनमें पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। Even doctor does not have at least homework कि वो घर जाके they don't have to read on daily basis. The amount of reading जो हम करते हैं वो तो एक अलग लेवल की रीडिंग्स होती हैं। वो on daily basis you are right drafting and reading. And I think जो आपने क्वेश्चन पूछा what सागर means is कि knowledge is power. I'll tell you. A person who has knowledge of law will never be afraid of anything in life. So that sense of power we feel. Because no one can dupe us, no one can make us feel anxious about anything, चाहे वो investigating agencies हो, because we know what are the rights, we know what are our powers, we know कि क्या गलत है और क्या सही है. So you know, constitution is everything, law is above everyone. So जिसको law की knowledge है वो किससे डरेगा? अभी जैसे somewhere we both are of the same age है ना, जैसे मैं आज की जनरेशन को देखता हूँ ना, मुझे कुछ कुछ चीज़ें फील होता है कि यार ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं. आप जब देखते हो क्या फील होता है कि क्या इस जनरेशन लैग कर रहा है? जनरेशन यार देखो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हो? Patience, I think. You know, their lifestyle, their way of seeing the life, सारी चीज़ें. जैसे मैं बताऊँ, जैसे हमारे टाइम पे होता था, जैसे आपने बोला मैं गांव से बिलोंग करता हूँ ना, I was also born in Calcutta. तो हमारी परवरिश में ना एक माँ बाप मारते थे, पीटते थे, एक वो डर भी था, कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया अभी. हाँ जी बिल्कुल, है ना. टीचर्स का भी एक डर था. हाँ, टीचर्स आजकल मतलब कुछ वो कर ही नहीं सकते. Respect भी कम हो गया. रिस्पेक्ट भी कम हो गई है. और एक मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, दिस जनरेशन इज ऑल्सो अमेजिंग. They are more talented than us. They are more exposed than us. Somewhere do you feel this exposedness is also an issue for their upcoming future? हो रहा है, काफी हद तक हो रहा है. Because you sometimes see many of the crimes ना, juvenile cases भी बहुत बड़े बहुत हैं. ज्यादा. मैं उसी पे आ रहा था. हाँ, ये जो चीज है ना, ये काफी हद तक कई चीजों में बहुत ज्यादा घातक भी वो हुई है, राइट. जैसे हाँ, जैसे सब्सटेंस अब्यूज है, जो बेसिकली 15-16 साल के बच्चे हैं. यार हम 15-16 साल के थे ना, बड़े सॉर्टेड रहते थे. हाँ, है ना. आजकल के 15 साल के बच्चों को देख लो आप, इसमें लगे रहेंगे. इंस्टाग्राम पे उनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर्स डालते हैं, कहीं ना कहीं से वहीं से ड्रग पेडलर्स तक के कांटेक्ट में है. बहुत बुरा हाल है जी. आप ये चीज देखो, ये अपने टचवुड अपने टाइम पे नहीं था. अपने टाइम पे एक ठहराव था, अपने टाइम पे माँ बाप की इज्जत थी, राइट. एक डर भी था, एक डर था. बहुत सारे फैक्टर्स थे. अब बेचारे माँ बाप इतने वो हैं, बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, उनको पता ही नहीं उनका बच्चा क्या कर रहा है. उनका बच्चा तो उनका जो घर का सर्वेंट है वो संभाल रहा है. ये बेसिकली मैंने इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखा है, राइट. तो ये चीज तो देखो कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप तो है. काफी सारा वेब सीरीज भी बना है इसमें. अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, मैं भूल गया, जो ये बच्चे जुवेनाइल केसेस बन रहा है. एंड व्हेन आई सॉ देयर वाज अ पार्ट, आई थिंक मैं भूल गया, ये पंकज त्रिपाठी थे उसमें, वो जब बच्चों को समझा रहा है, rather than understanding what the lawyer is saying, he started arguing with that person. जबकि वो पर्सन उसकी ही सपोर्ट में आया था. करेक्ट. वो फील होता है या कभी महसूस किया वो? हाँ, ये सब चीज तो आज के जनरेशन में है ही. अमीर घर के बच्चे ज्यादा ऐसे होते हैं. अमीर घरों के बच्चे. हाँ, यू कैन से दैट. Because they are very much neglected. जिन बच्चों को चाइल्डहुड के टाइम या व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अपने पेरेंट्स से, बिकॉज आई टेल यू मोस्टली जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए सम पेरेंट्स मेक श्योर कि वो जो टाइम दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो नेग्लेक्ट हो जाता है. और जो नेग्लेक्टेड बच्चे रह जाते हैं ना, उनका जब वो अडल्ट्स में आते हैं, दे डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स, स्पेसिफिकली सब्सटेंस अब्यूज. जो अमीर होगा दे वुड हैव रिसोर्सेज ड्रग्स खरीदने के, सो वो जो सब्सटेंस अब्यूज है, इमेजिन अभी जो पोर्शे वाला केस हुआ था पुणे में, दैट वाज अ सब्सटेंस अब्यूज. वो अमीरों के बच्चे ही तो थे ना, जो who could afford that kind of substances, जिसमें कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंस फील करते हो. जैसे आप कभी कभी देखते हो ना कि जैसे हमने अभी तक बात कर रहा था, अमीरों के बच्चे को एक सपोर्ट मिल जाता है, गरीब कहीं ना कहीं जूझते रहता है. बीच में रुक के एज अ लॉयर आप भूल जाओ कि यू नो आपको किसको हेल्प करना है या आप किसकी तरफ हो. खुद को बीच में रख के कभी कभी हेल्पलेस फील किए कभी? ऐसा तो मतलब नहीं, क्योंकि हम गलत को गलत और सही को सही ठहराने की पूरी एक वो रखते हैं, हिम्मत रखते हैं. और जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे डंके की चोट पे कहते भी हैं कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है. उसमें चाहे गरीब को रिप्रेजेंट करना पड़े तो बिल्कुल बहुत खुशी खुशी रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा नहीं है कि
यार देखो, नाम का लालच है, फीस का लालच नहीं है अपने को। नाम के साथ कभी वो नहीं कर सकते। गलत को गलत रहने की, बोलने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं, और आज तक किया भी है ना। कम से कम इतना तो है कि गांव जाके अपने बाप की नजरों से नजरें मिला के कह तो सकते हैं कि मर्द वाला काम करके आया हूँ। ये एक हिम्मत रखते हैं। हमारे एंगेजमेंट वाले दिन का है, तो इनका जो घर है, इनका जो फार्म हाउस है, तो मैं आपको लेके चलूंगा। वो जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक खेत ही खेत है। फार्म हाउस बिल्कुल, मैं जब शादी करूंगा दे देना मेरे, ऐसे नहीं दूंगा। ये इनके घर के बैकयार्ड की वो है जो कहाँ पे है फार्म हाउस? हिसार में। हरियाणा का। तो ये वहाँ की तस्वीर है जो कि अभी फरवरी के टाइम पे पूरा डीडीएलजे वाली फील आती है। सरसों के खेत वगैरह की। तो ये सब कैसे बच गया डेस्टिनेशन? अरे नहीं अभी कोई नहीं, वो ज्यादा लगते हैं। क्यों? आपके है ना? नो, अब पूरा सेटअप लेके आना एक फार्म हाउस में, सो इट्स मोर कॉस्टली। बट अभी बिकॉज़ हमने वेडिंग की है ना, तो मुझे पता है। अच्छा, शादी अपनी वहीं की है? नहीं, शादी मानी गई, शादी का वेन्यू डिफरेंट था, बट कुछ प्रोग्राम्स वहाँ थे, जैसे रिंग सेरेमनी वहाँ पे था, हल्दी वहाँ पे थी, मेहंदी वहाँ पे। अभी कोई सी फिल्म शूटिंग के लिए आ रहे हैं टीम, शायद को पता है। ये कहाँ के फोटो है? ये वहाँ की है। अच्छा। तो ये एक फ्रेंड की वेडिंग की है, एंड समवन सेड दैट आई टेक वेरी गुड पिक्चर्स, एंड इट वाज अ कैंडिड पिक्चर। मोबाइल पिक्चर हाँ, ये कैंडिड पिक्चर है। डीप बियर्ड उस टाइम पे रखे थे। हाँ उस टाइम अभी एक दो वहाँ पे। हाँ रोलिंग रखना यार। This photo में सबसे पहले जब आया था, I saw this picture. ये कब का है? ये पिक्चर हमारी शादी से 2 दिन पहले की है। शादी के 2 दिन? जिस दिन This Supreme Court, right? हाँ, Because I'll tell you, सुप्रीम कोर्ट में जो डेट्स आती है ना, बहुत बार आपको पता नहीं होता है कि वो वाली डेट होगी। आपको 3 दिन पहले मैसेज आता है कि that's the date. टेंटेटिव डेट्स दी जाती है, जो कि वीक बाद थी हमारी शादी के, बट वो समहाउ प्रीपोन हो गई। शादी बोल के you cannot miss out ना dates. बट वो ऑलरेडी डेट आ गई, एंड इट वाज एंटिसिपेटरी बेल। सो एंटिसिपेटरी वो होती है कि जिसमें योर क्लाइंट कैन बी अरेस्टेड, और वो एनीवे क्लाइंट छुप के रह रहा था, सो इट वाज एन इम्पोर्टेंट डेट, सो वी हैड टू रश। तो ये हमारी शादी से एग्जैक्ट 2 दिन पहले की थी। A lot of books. ये सब ठीक है यार, पढ़नी पड़ती है, वो कलर है। So we love books, so we love it, like we love our collection. ये बुक मैंने लिखी है और सोनल ने, ये बुक है, ये हमारी बुक है। ये before wedding. We should study, guys. If you want to become a lawyer. Today a leader, tomorrow a leader. Yeah. Wow. This is my God. Today a leader. बस लिखने के लिए भी तो अलग माइंडसेट चाहिए, वो लिखना पड़ता है अलग से। हाँ नहीं बिल्कुल, उसमें मतलब बड़ी मेहनत लगी थी इसमें। 6-8 महीने की मेहनत थी, काफ़ी मतलब पोस्ट कोड आर्ट्स करना पड़ता था। तो ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट था मेरा इसमें, आई वांटेड एक सीवी में एक ऐसी चीज़ हो जो बहुत यूनिक हो। और यार लेखक बन जाते हैं ना, तो फील अलग ही आती है। राइटर बन गया अलग ही उसका एक हो रहता है। आप 5 साल के बाद कहाँ देख रहे हो अपने आप, जैसे आपने पूछा था? यार देखो, अब तो प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस है, चल रही है, अपना कर रहे हैं, और इसमें स्काई इज द लिमिट। जितना आगे जाएंगे, जितना निखरेंगे, उतना नाम और शोहरत कमाएंगे। ये है प्रैक्टिस का वो, इसमें कोई अंत नहीं है। What's your favorite movie? फेवरेट मूवी? यार सही बताऊं तो फिलहाल में तो कोई ऐसा नहीं है कि मूवी देखने का टाइम ही नहीं बचता। हाँ, बट पहले की मूवीज की बात करें तो काफी सारी मूवीज है। पहले तो आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे I also want to 70s born हो। नहीं यार, इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी रिसेंट में। बट लास्ट 3-4 सालों से तो आप दोनों नहीं अभी मूवी डेट्स पे नहीं कर रहे? नहीं यार, टाइम ही नहीं मिल पाता। मूवी डेट्स कहाँ की मूवी डेट्स? कौन Imagine, क्या देखेंगे हम लोग? इतना थ्रिल तो हम कोर्ट में देखते हैं, इतनी थ्रिलिंग हमारे पास लाइफ स्टोरीज है, हमें क्या एक्साइट करेगा? आई थिंक एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है हमारी मूवीज से, बिकॉज़ एवरीथिंग इज सो इम्प्रैक्टिकल। सिर्फ कोर्ट डेट्स होती हैं, अदरवाइज कोई मूवी डेट्स नहीं, कोई वैसे हाँ एक आधी बार वैसे जाते वी हैं। वांट हॉलीडेज बहुत, मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मंथ हमें हॉलीडे चाहिए टू रिलैक्स अस, जहाँ पे हम कोर्ट की और केसेस की बातें नहीं। But just now you said कि I think you both were in honeymoon, तब you did VC. हम VC से पूरा बोथ ऑन एवरी हॉलीडे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि
we have to appear in court. Quality कुछ is- urgent आ जाता है. सुबह सुबह होटल में उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करके पहले काम वाम करते हैं, 1-2 घंटा काम निपटाया, जो भी कोई वीसी के थ्रू अपेयर होना, कोई बेल लगी है, कोई फाइलिंग करनी है, कुछ भी ड्राफ्टिंग का काम बचा है, तो वो सब करके फिर कहीं बाहर घूमने निकलते हैं. तो ये है, हॉलीडेज में जाके शांति नहीं है. बट शांति नहीं भी चाहिए. Touch wood. हाँ, शांति नहीं चाहिए, काम चाहिए, काम कर. एक है ना, मतलब आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक दिस क्वेश्चन. तब हम ये डिस्कस कर रहे थे, बट आई थिंक एज अ कॉमन मैन भी लोग इसको डिस्कस करते हैं. एज अ क्रिमिनल लॉयर जब क्राइम्स होते हैं कहीं ना कहीं आप लोग भी तो सोचते हो ना, होना भी चाहिए, इट्स आवर प्रोफेशन. I'll tell you already इतना क्राइम है इंडिया में कि हमारी दुकान और हमारा काम चलाने के लिए वो भी सफिशिएंट है. अगर कुछ कम भी होगा तो we will be happy because रहना, we are part of society. हमारे भी बच्चे यहीं बड़े होंगे, हमारे family members are also part of society. So we have never manifested कि crime बढ़े because you know as a out of court you have a family, you are part of the same society, you want to feel secure. आप क्यों insecure feel करना चाहोगे? Because crime, we don't want crime बढ़ना. Crime कम होना. What should be your tips to be a good husband? Tips to be a good husband. सबसे पहला और सबसे सही बताऊं, एक ही मूल मंत्र है. सुबह के सॉरी नहीं, वो अरे सुबह तक बात ही नहीं जाने देनी ना. जो भी मैडम को पसंद नहीं हो वो मत करो, जल्दी सॉर्टेड चलेगी दोस्त. अच्छा, समझ गए? जो भी आपके जो स्पाउस हैं, जो आपकी वाइफ है, वो उनको जो भी पसंद नहीं हो वो मत करो. है ना? थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग जा रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करो कि वो मत करो, लाइफ सॉर्टेड चलेगी. अच्छा, बस एक ही टिप्स. ये टिप सबसे बेहतर काम आती है. ये इस टिप से बढ़ के कुछ है भी नहीं. तो सारे पॉइंट सीख के आप मैडम को क्या क्या नहीं पसंद है? सीख रहा हूँ, चलता रहेगा. चल रहा है अभी. Soon I will be the most perfect. In a rating which you will say, you know, you are a good lawyer, you are a good husband? Both. अच्छा, which is difficult, court और घर? यार कोर्ट ही डिफिकल्ट है. पहली बार आपको मैं जब से हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इट टुक सच अ टाइम. समझ लो ना, कोर्ट ही डिफिकल्ट है, घर तो चल ही जाता है. He was anxious कि अगर मैंने ये बोला कि घर ज्यादा डिफिकल्ट है तो then questionnaire आएंगे. जो मैंने बताया, जो इनको पसंद नहीं हो वो नहीं करता. पोस्ट पॉडकास्ट हम तो चले जाएंगे फिर. हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं घर डिफिकल्ट नहीं है, कोर्ट है. Like how many years now in this business we can say, law business? No, this is not a business, this is a profession. मतलब आजकल वो टेक से भी टर्म हो अच्छा, गया. तो 5 years. 5 years. हाँ. Most memorable क्या था 5 साल में? मोस्ट में देखो, जब भी सही बताऊं तो जब भी कोई बेल कराते हैं ना, जब भी किसी घर का कोई बालक बाहर आता है जेल से, तो वो हमारे लिए सब मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं. For you all, most of the times you bail a criminal. सॉरी, Most of the times you all bail a criminal. या Yeah. क्रिमिनल्स की बेल होगी, जो अंदर है उसकी बेल. But no, most of time कुछ times ऐसे भी होते हैं a person has not done anything, वो falsely implicate हुआ है, बिल्कुल. and to get that kind of person out वो एक अलग ही होता है. And one of my most memorable I'll say bail cancellation. So Okay. we knew that that person has done that thing and other advocate got them bail and then we got it cancelled from the higher court. Okay. So that was such a relief, you know, to get that person back to the jail. Because we knew that person has done that crime. So felt good, you know. अब अचानक एक सवाल मुझे याद है, आई थिंक कोई मूवी में मैंने दिखाया था, जैसे यू बोथ आर यू नो इन अ कोर्ट और या इंडिविजुअल लेवल पे मेनी ऑफ द टाइम्स होता है कि आपके ओपोनेंट जो है ही इज अ वेरी सीनियर, वेरी रेप्यूटेड एंड वेरी फेमस पर्सन. व्हाट मैटर्स दैट टाइम? एक डर मन में रहता है कि अलग से होमवर्क करना पड़ता है और कैसे उस प्रोसेस को कैसे झेलते हो? जैसे मान लो कल सुबह है वो, ऑब्वियसली आप टाइम लेते हो, बट इज देयर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस कि मैं रात को ये चीजें करूंगा? I also need to think out कि उनका क्या weak point है, वो कैसे सोचते हैं? I'll tell you. So one of the reportable judgment I had. Reportable is something जो कि report होता है, जो judgment बड़ा होता है. So that was an education matter. Okay. And the most popular, the opponent was a senior advocate. Okay. Quite a good name he has earned. He started practicing in the year I was born. Okay. Oh my God. So
I was not aware beforehand there would be a senior advocate coming because I got the relief on the very first day. But just before entering into the court and before arguing the matter, an hour back he called me because जो brief था, जो भी हमारा था, that didn't reach him, so he asked me to send it again. तब मुझे पता चला कि ओ इतने बड़े नामी वकील is gonna be my opponent. But I'll tell you something, I would thank my father here. He has always given me that kind of confidence that for a minute also I didn't feel कि there is something, extra or he's such a big name or I should be little scared. I've been a very confident kid throughout my life. I don't know, maybe I was born like that or my parents made sure कि मतलब कुछ ऐसा होता ही नहीं है. So the day I started practicing से लेके आज तक, even my husband would tell you that even in ED matters we have appeared. So in ED matter most of time, the other counsel has been senior advocate, and we being such a newcomers in the litigation, I've never felt that somehow. एक रियलिटी बेस्ड सवाल पूछूंगा, ये मैं आपसे पूछना है कि जैसे there might be many upcoming lawyers who are following you. बाहर से ना 90% किड्स को इट्स अ ग्लैमरस वर्ल्ड लगता है जी, पैसा, फेम, पावर, है ना. बट आई मोस्ट ऑफ दिस आस्क दिस क्वेश्चन टू द ब्यूरोक्रेट्स कि लोगों को लगता है कि जैसे एसपीज, डीएम्स ना इतना कुछ है. कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पर्सनली इज वेरी लोनली. ये महसूस होता है कि, और हाउ विल बी यू गोना डिस्क्राइब इट टू द अपकमिंग ऑल द लॉयर्स, रियलिटी क्या है? नहीं, देखिए इसमें तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, लोनली तो ऐसा सच नहीं होता, लेकिन हाँ जिस तरह से ये जो प्रोफेशन डे बाय डे ग्रोइंग है, जिस तरह का एक्सपोजर इसमें है, जिस तरह का एक ग्लैमरस जो आप वर्ड यूज़ कर रहे थे, ग्लैमर भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, पावर भी है. किसी भी चेयर पे, कहीं पे भी, किसी भी टेबल पे जाके बैठोगे तो आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट है. ये रुतबा इस प्रोफेशन में है और आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ेगा. जो दौर 2010 में 2010-12 में जो आईटी इंजीनियरिंग का दौर था, 2030-35 तक वही दौर लॉ का आने वाला है. घर का बच्चा लॉ करने लग रहा है और वो इस फील्ड में जाने लग रहा है. तो ये अपने आप में एक चौमुखी और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ा एक प्रोफेशन बनने लग रहा है. बट आई थिंक जो आप कह रहे हो ना, ग्लैमर के साथ जो साइड इफेक्ट जो आप जानना चाह रहे हो इस प्रोफेशन का, वो है स्ट्रेस. हाँ, उस चीज से अपने आप से जूझना, स्ट्रेस ऑन डेली बेसिस. बिकॉज आई विल टेल यू स्ट्रेस क्यों, स्पेसिफिकली क्रिमिनल, द एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉ, इतना स्ट्रेस होता है बिकॉज डेली बेसिस पे यू गेट सो मेनी कॉल्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स. मैडम कैन यू मेक श्योर कि कल मेरा बेटा या बेटी बाहर आ जाएंगे. सो देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर and lot of hopes on your shoulder. तो to kind of satisfy your client, stress बहुत ज़्यादा होता है. And every day इतना ज़्यादा stress is harmful for health also, I tell you, because somehow वो एक anxiety होती है that to give your best. Though with some years we get so used to this lifestyle कि ये stress को हमें कम करना, like I also keep telling to myself that I should not be that stressed. But I'll tell you, जब हम prepare कर रहे होते हैं किसी भी matter के लिए, for example tomorrow I have to appear for any bail, there's a murder bail. Imagine stakes कितने high हैं. One, it is the most serious offense, कोई मर चुका है, तुम्हें जो accused से बाहर निकालना है. कभी भी वो preparation end नहीं होती है. मेरे मन में हर टाइम ये चल रहा होता है कि I can do more, I can read more, I can think more. तो जब तक वो बेल में we don't argue और जब तक arguments नहीं होते हैं जजेस के आगे, तब तक it keeps on evolving in our mind. मतलब वो चलता रहता है और वो नॉन स्टॉप प्रोसेस होने की वजह से वो स्ट्रेसफुल भी हो जाता है कहीं ना कहीं. प्रोफेशन becomes monotonous sometimes. हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप आपके प्रोफेशन में एंजॉय नहीं कर रहे हो, बट मोनोटोनस होता है. वही बात है ना यार, स्ट्रेस को आप मैनेज करना सीख लो, चीजें काफी हद तक मोनोटोनस आई वोंट एग्री कभी भी होता है बिकॉज़ नए केसेस आते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज में. नहीं, एट अ स्ट्रेच अगर आप 3 महीना काम कर रहे हो, मैं डायनेमिक वो वाला पार्ट नहीं बोल रहा हूँ. कहीं ना कहीं तो आप जब घर पे अकेले बैठती हो तब तो महसूस होता ही होगा कुछ अलग चाहिए, या
अब बस हो गया मेरे को, जैसे आपने बोला कि वैकेशन में जाते हैं। हाँ, नहीं वो उस कारण नहीं होते। Never हाँ, ever, this because is- this is such a thrilling experience. हाँ. I tell you, every day you get to deal with new laws. New मतलब laws. क्योंकि restricted नहीं है. We Your always threat learning. Threat calls, no. We do. That's the reality. What about your safety, like lawyer safety क्या होता है फिर? Lawyers की safety is at stake. इसीलिए काफी incidents भी हुए हैं where you know lawyers has been hit and beaten up. Because lawyers, I don't think you all get securities and other stuff. We don't. There's a Advocates Protection Act है, but वो अभी उतना implementation पे नहीं है। अच्छा। There is, and you know, we are trying की better protection provided हो, because I tell you specifically criminal lawyers के लिए stakes are very high, because sometimes the matter is so influential and the other side knows that you are doing good. So last तक जब तक final arguments तक कोई case पहुंचता है, we do get messages and all that we should not appear, because वो पता लग जाता है who's gonna win the case, you know, किसकी तरफ used जाना to हो जाते हैं उस चीज को लेके कि नहीं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता भी है कई बार। देखो यार, अब घर परिवार तो हमारा नहीं, थोड़ा चक्कर तो लगता ही है ना, अगले का तो भरोसा नहीं है ना। अगला तो हमारे ना हरियाणा साइड में अगर आप टिपिकल उसमें जाओगे तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स बड़े फेमस होते हैं, और लोगों ने बोले भी हैं, रिकॉर्ड में आपको कई सारे वो दिखा सकता हूँ। बोला भाई अपना थोड़ा देसी टोन में बोलते हैं, बोला भाई 10 मर्डर तो कर दिए, 11वां भी करते हैं, कुछ नहीं जवाब का, राइट। थोड़ा देसी टोन में बोलते हैं। तो यार जो क्रिमिनल इंटेंट है ना जिसका, जो ऑलरेडी एक गैंगस्टर, जो ऑलरेडी किसी गैंग से बिलोंग करता है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीजें करना। बट हाँ देखो, घर परिवार हमारा, ये सारी चीजें एक टाइम के बाद तो यूज्ड टू हो ही जाते हैं, बट आप डिपेंड करता है कि जो एडवोकेट्स की यूनिटी है वो सबसे बहुत अच्छी है। महत्व रखती है एडवोकेट्स की जो यूनिटी। कई बार लगता है कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वो केस पढ़ रहा था, तो देयर वाज अ यंग गाय, तो कॉलेज में थे, उसको एक फॉल्स केस में अंदर डाल दिया एंड वो चीजें चलते गए। डू यू समटाइम्स फील कि फोर्सफुली कोई क्रिमिनल बन जाता है? Yes, yes. बहुत सारे हमारे ऐसे clients हैं who are forced into this world of criminals. We know because from a very young age वो हुए थे एक दो छोटे मोटे cases, but lot of time I'm telling you, police play a very big role in ruining someone's life. ठीक है, investigating agencies sometimes they put in so many charges. I don't know you remember or not, जिस दिन हम फोन पे बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि police and lawyers have a sweet life story. हाँ, I term it as a sweet love story. You know, we love to be together, but we hate each other. We take each other's class in the court. जो भी मैडम बोल रही हैं आप उनको ही ले लो ना, बन्या सुर्वे। He was a very intelligent person which eventually turned into a gangster because उसके बड़े भाई ने, भार्गव सुर्वे उनके बड़े भाई का नाम था, वो क्रिमिनल था, उसके केस उसके एज में वो अंदर गए थे। Do you know मनमोहन? That happens a lot. मैंने पढ़ा नहीं इस केस के बारे में। अगर एक फैमिली में, for example, अगर elder brother gets into criminal world, so they make sure कि पूरी family get into it, क्योंकि false cases to force, वो force करने के लिए elder brother को to surrender, they make sure जो younger brother है, because recently also there's a case we were handling, उसमें क्या हुआ, जो elder brother था, that person went to Dubai, यहाँ पे crimes You're करने। saying the same story, like जो अभी No, that's different. I'm telling you the case we are dealing पूरा with. 1991 जो 8 years बना था पूरा। अच्छा वो उस time की ओके, बात कर रहा हूँ। अच्छा आई थिंक दैट डॉक्यूमेंट्री गेम ना। नहीं, that movie also shoot out at बड़ा। हाँ आप समझ बन्या गए, सुर्वे। हाँ समझ गए आप समझ वो मूवी, but I'm telling you real life case which we Real are life dealing case with होते हैं। right now. Okay. So जो elder brother था उसने crimes किए and that person somehow through its network went to Dubai, settled in Dubai, staying in Dubai. But police investigating agencies made sure कि he comes back from Dubai. How come? उसके जो बहन और भाई थे वो were settled in India. जो छोटा younger brother था, that's a salaried person. Okay. Very intelligent, did a engineering from IIT, doing very nice job in an MNC in Gurgaon. Has कभी कोई criminal history नहीं रही है. They made sure कि उसको falsely बिठा के रखे police stations में, पूरा harass किया mentally, physically also. That person sometimes bribes भी दी to get out of the police station and to get off all those charges. But somehow कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ falsely implicate कर ही दिया. And that person after a point of time, वो कहते हैं ना, एक false charge के बाद दूसरा, to prove करने के लिए भी कि हमने कुछ नहीं किया, takes
अ टाइम, बिकॉज नॉर्मली रूल ये चलता है कि जब तक चार्जशीट नहीं आती है, चार्जशीट का पीरियड 3 महीने में आता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तब तक तो यू कांट आस्क फॉर बेल डायरेक्टली, बिकॉज ऑलवेज जजेस से कि लेट द चार्जशीट कम, विल सी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाता, देन यू आस्क फॉर द बेल टू सीक योर फ्रीडम फॉर डूइंग नथिंग, यूर बिहाइंड द बार्स। तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बदल देता है एक आम इंसान की जिसने कुछ नहीं किया। सो ये जस्टिस सिस्टम ना थोड़ा डिलेड है, तो ये जो डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को ना क्रिमिनल बना देता है, क्योंकि वो अंदर कंपनी किसकी है। सो इफ यू हैव हर्ड अ सेइंग कि जो तुम्हारी कंपनी है वो तुम्हारा फ्यूचर है। सो अगर एक आम सही इंसान को आप 100 क्रिमिनल्स के साथ बंद करके रख रहे हो, वो उठ उनके साथ रहे, खा उनके साथ रहे, व्हाट साइकोलॉजी डू यू एक्सपेक्ट इन लाइफ? सही बात है। और एक चीज मैंने अभी आजकल महसूस करता हूँ, यू नो बीइंग अ फीमेल, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि कई बार लगता है हम इंडिया में एज अ फीमेल बहुत बार हम पावर्स की गलत इस्तेमाल करते हैं व्हेनेवर कम्स टू अ मेल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस पे नहीं बोल रहा हूँ कि यू नो मेल्स गलत है या जो है, कुछ बहुत सारे केसेस चल रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेल्स एक्यूज्ड हो जाता है। I'll tell you, because of these kind of girls जो कि लॉज का मिसयूज कर रही है, there is a huge अमाउंट ऑफ केसेस जिनमें कहीं ना कहीं सस्पिशियस इतना ज़्यादा आईब्रोज रेज हो जाती है जजेस की और इवन एडवोकेट्स की, तो कहीं ना कहीं वो डिग्निटी होती है ना एक वुमेन की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कोर्ट में व्हेन वी आर आस्किंग द क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है, मिसयूज है, हर लॉ को मिसयूज किया जाता है। जो विमेन सेंट्रिक लॉज है उनको विमेन मिसयूज कर रही है, जो द राइट्स विच आर इन फेवर ऑफ मेन वो मेन मिसयूज कर रहे हैं उनको, जो मिसयूज रहता है और कहीं ना कहीं लड़कियां कर रही है मिसयूज। आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज केसेस वेयर आई नो दैट पर्सन हैज नॉट बीन रेप्ड, वो फॉल्स रेप चार्जेस लगाए हैं ऑन माई क्लाइंट एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड द बॉय देयर। Otherwise, I have a rule. If it's a genuine rape case, I never represent. I just have my personal rule. Dowry death में and rape में I don't represent the accused if that person has done that. Because clients advocate को जरूर सच बताते हैं. Doctor और advocate से वो नहीं छुपा सकते हैं. If we have to get them relief. But there have been many cases I've got bail of my clients where that person has not done anything. It's a totally false rape charges. और ये kind of business भी चल चुका है. If you see in NCR वो dating apps पे they meet and the minute you enter they say okay you give that much money otherwise I'm calling the cops and that's how things start. And to prove कि आपने कुछ नहीं किया उसी में 3-4 महीने लग जाएंगे. How you all charge, like कैसे होता है ये being I am a client, अगर मैं आपके पास आया किसी चीज़ को लेके, तो I just want to understand कि कैसे charge चार्जिंग सिस्टम्स देखिए डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, पार्टी टू पार्टी एंड द अमाउंट ऑफ एंड द टाइप ऑफ ऑफेंस व्हिच ही इज देयर। you can give me a rough idea for a layman. देखो हर मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ। नहीं हर एडवोकेट इस पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए हमारी सैलरी तो है नहीं, हमारी तो फीस है और हर एडवोकेट डिपेंड करता है डिफरेंट टू डिफरेंट। अब कोई छोटे से क्राइम का कोई शायद मतलब किसी पर्टिकुलर क्राइम का आप ले लीजिए, कोई 50,000 चार्ज करता हुआ, कोई 1 लाख 2 लाख, कोई पर्टिकुलर रेट है कि इसी रेट से शुरू हो रहा है। किसी भी सिर्फ ये एक इंडस्ट्री है where fees is not at all standard, is not predefined, not at all. कोई भी प्री डिफाइंड चीज नहीं है। एडवोकेट टू एडवोकेट, क्राइम टू क्राइम, सारी चीजें शहर टू शहर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब जो रेट दिल्ली में है वो रेट आपके जयपुर में नहीं हो सकते, वो रेट आपके स्मॉल टाउन में नहीं हो सकते। नहीं तो मतलब जैसे कोई केस आया, आपको पता है कि उसको ना 2 हेयरिंग 3 हेयरिंग होती है, we will charge on the basis of hearing or the full case? डिपेंड करता है, हियरिंग बेसिस पे भी पर डेट पे भी चार्जेस लेते हैं, फुल फ्लैश भी ले देते हैं, डिपेंड करता है। जो कम क्लाइंट की भी वो देखी जाती है, because we always give them preference कि this is the basic charge for drafting and filing and then there is charge per day and there is charge for entire case no matter how many hearing it takes. How costly are lawyers nowadays? हर लॉयर It's का a अपना costly एक brief idea.
very अब आप costly. सीनियर एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं तो छोटे मोटे चार्जेस कोई ऑफेंसेस के वो अराउंड 50 लाख भी लेते होंगे 1 करोड़ 50 lakhs for a case. 50 lakhs for a case 50 So lakhs there is a scam of 100 crore. If that person comes saying I have done 100 crore scam, what do you think? You will charge 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 10 lakh? Of course, a lawyer would charge him in crore. And why he should not? Do lawyers fail many times? केसेस में कई बार हो भी जाते हैं फेल But how can you say it's a failure? Because you know it's very unpredictable. What happens tomorrow? But for a client, the lawyer failed. No, I'll tell you because there's a hierarchy. You know, there's if you're failing at a lower level at a district in front of a district judge, then you have a higher court, then you have Supreme Court, and even if you don't get a relief in Supreme Court, then you come back. Okay. You know, the circle keeps evolving. So at one point of So time, basically, you there's will no get end. There's no end. There is no end चलता रहेगा केस आप उसमें Except the trial. I'm talking about bails, but trials का end है. जैसे कि अगर आप लोअर कोर्ट से हार गए हैं, अपना मर्डर ट्रायल मानिए, आप अक्विट हो चुके हैं कि आपने मर्डर किया, आपको 20 साल सजा मिलेगी. Then you go in appeal in higher court. हाई कोर्ट्स में जाओगे आप और हाई कोर्ट में भी अगर 10 साल चला वहाँ पे भी आप हार गए हो, then you have Supreme Court. Then it's an end. Then you have to be behind the bar for 20 years. The way you were saying murder, तो मैं I think this became very common for both of you. You know, like every time we got a call, सर वो मर्डर कर दिया मैंने. जैसे डॉक्टर्स के पास होता है कि सर मेरा ये हो गया. हाँ जी एकदम डे टू डे लाइफ हो गया होगा ना. Yes. हाँ Used to it. basis पे हाँ used to it मतलब nothing special in it मतलब कोई इसको So we also deal with lot of white collar crimes also. ये वाले white collar नहीं कह सकते आप murder को and all, डकैती, murder, attempt to murder. There's a lot of attempt to murder also. I tell you, murder से ज़्यादा. That's पहले 307 होता था, now it's changed. So Are we still working on the same IPC? no अब BNS आ गई भारतीय BNS न्याय आ संहिता गया and for CRPC it's भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Okay. just the section numbers have changed and some laws have also evolved. कुछ changes. So आप लोगों को फिर से इस पे पढ़ाई करना पड़ रहा है. Yes. अब नए लॉज के अकॉर्डिंग now we cannot say धारा 302 के तहत इसको So murder is not anymore 300. हाँ सब It's सारी way- चीजें चेंज हो गई हैं. It's 107 107. I'm not aware because now we are getting used to it क्योंकि जुलाई में तो implement हुआ है. और So उसमें every भी time we have to Google what's the अगर new. अगर कोई FIR 30 जून को भी हुई होगी ना तो it has to go by the previous laws by the IPC and law. जो 1 जुलाई या 2 जुलाई को 1 जुलाई के बाद अगर कोई FIR हुई है तो उसमें BNS का सेक्शन लगेगा अदरवाइज IPC CRPC चलता है. Getting my point? So what last question काफी देर से मैं कर रहा हूँ कि what will be your tips both of you for a आम जनता कि जैसे हमें बहुत कुछ होता है दिन में ना हम घबरा जाते हैं चीज़ों को लेते हैं when it comes to police लोग आज भी लगता है कि थाने में क्यों जाना है ना even people fear to go to a lawyer also. Yes. काफी लोगों के पास पैसे भी नहीं होते बट जिनके पास पैसे भी होते 90% टाइम लोग होते हैं कि let's sort it out here. What will be your take on for those people? देखिए उसमें तो मेरा टिप तो यही रहेगा कि सबसे पहले तो आप पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है या अपने आप एडवोकेट्स हैं इनको अप्रोच कीजिए. कोई भी आपके साथ किसी भी तरह का कोई साइबर फ्रॉड होता है या कोई और तरह का क्राइम होता है तो आप ऑनलाइन रिपोर्ट कीजिए उसको क्योंकि जब तक आप शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे ना तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी. अगर आप अपनी सुनवाई चाहते हो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहते हो तो उसका एक प्रोसीजर है राइट. आपको उसको फॉलो करना चाहिए और बीइंग अवेयर आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप पुलिस अथॉरिटीज को अगर आपके खिलाफ कोई भी आपका क्राइम होता है आपके खिलाफ तो आप उस चीज की शिकायत करें राइट. I feel the one tip I would like to give to your viewers is कि you know इतना कोर्ट से डरो मत क्योंकि वो कन्वेंशनल सिस्टम ना चेंज हो रहा है बिकॉज अब अवेयरनेस है. यू हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन रीड अबाउट कि आपके केस में बिकॉज ई कोर्ट्स आ चुके हैं वर्चुअल हियरिंग्स हो रही हैं. इफ यू आर सिटिंग इन बैंगलोर एंड यू हैव अ मैटर इन दिल्ली सो अगर आप पहले क्या होता था आपको यही नहीं पता होता था क्या चल रहा है. अब ऑर्डर्स अपलोड होते हैं ऑनलाइन आप अपनी हियरिंग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके केस में. एंड यू नो एवरीथिंग इज अपडेटेड ई कोर्ट्स पे कि नेक्स्ट डेट कौन सी है लास्ट ऑर्डर क्या था वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो रहा है. सो जुडिशरी इज ट्राइंग देयर बेस्ट बार इज आल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट कि एक सिंक इन रहे और जो क्लाइंट्स हैं वो अब अनअवेयर नहीं है
कि you can't make a fool out of a client saying कि आपके केस में तो ये चल रहा है, because very well all you need is a normal online internet ही तो चाहिए आपको, e-course पे you will have all the information. So I think इतना डरना नहीं चाहिए to approach the court, to approach the justice system, क्योंकि अगर जब तक आप approach नहीं करेंगे जब तक कुछ change होगा नहीं, because वही कहते हैं ना, माँ भी दूध तब पिलाती है जब आप मांगते हो. Honestly, I love doing the podcast, but as you know, I always take a feedback. इसे नहीं कि I honestly want to ask you, क्योंकि जैसे मैं officers को पूछता हूँ, you all meet hundred of people on a day basis, no? You will judge person. I don't want a feedback कि Veeam Tales में अच्छा लगा, वो तो आपकी मर्जी, देना है तो दे सकते हो. But how we want to judge me, both of you personally, I want to know. When I came, because you all have a mindset, ना, वो mindset मुझे जानना है. जज तो हम बिल्कुल नहीं करते. नहीं, judge in the sense, I mean, feedback. But थैंक यू सो मच, आपका बड़ा ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहा. एक जिस द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस और जिस तरह से आप इतने डीप क्वेश्चंस जो निकाल के लाए वो वाकई में काबिल तारीफ है. थैंक यू सो मच एक यहाँ पे आने के लिए, है ना. और अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि डिनर करके जाना, ऐसे जाने भी नहीं देंगे आपको. हाँ जी. So I feel कि मतलब मुझे लगा ही नहीं कि कैमरा ऑन था. मतलब most of time I felt as if we are just talking to a friend. So on your part I feel you made us so comfortable with you that we could share such deep insights about our personal life also, which has happened first time with Sagar because I don't think he's shy. He's not at all shy. He's the most extrovert person on this planet you will find. But he's shy in sharing his personal. But आज मुझे उल्टा लगा, to be very honest. हाँ. आज मुझे उल्टा लगा. He's very. I am the person who's only. नहीं, मैं बोसी वाली शाय नहीं बोल रहा. मतलब आज आप दोनों के बीच में मुझे लगा आप थोड़े से introvert and you are extrovert. I think maybe that's what I'm saying. It's your company that I could be so extrovert, because I am extrovert with selected people. He is extrovert in general. Do you remember your both first meeting? Yes, very clear. Date. आप बताओ. डेट मैं बताऊँ? गलत बताना. नहीं. I am very good with dates. अच्छा. I forgot you were That was 9th of April 2024. 23. Sorry. 23. What she was wearing? 21. She was wearing white color का जो एक top था and jeans skirt. Is it right? Yes. I was wearing a top and a skirt. Where you met? वो कहाँ है दिल्ली में, वो कहाँ गए थे मतलब? Nehru Place. There's a very nice cafe. We went there for dinner. I just want to ask you this question because आप दोनों हमारी generation के हो and इस generation के में बहुत कम लोग मिले अभी तक जो arrange marriage है. How is it? Like because आप भी अपने generation में you have been friends or whatever it is. How is it? ये reply करेंगे. See, I'll tell you, I was very busy with litigation, so I made sure that I want to focus 100% just into this career because it's a very competitive profession. So I was very clear. I had a very tight schedule. Wake up at this time, do this much work, go back home. I was very strict for almost 2 years of my life initially because it was a well thought decision. This was before marriage? Before marriage. Okay. That's why, of course, arranged marriage. But then there comes a point of time where parents ask, hey bhai, what's the next step? So I said, I have no plans. All plans I had was only for litigation. And now I have a settled practice in Delhi. Because जिसमें आप energy लगाओगे वही grow करेगा. So well, litigation तो grow हो गई, but personal life में रह गई. Then they're like, I'm like, okay now, basically parents, I need your help. Find me a partner. And he was the first one, the first profile they sent me. So I was very sure that I want a practicing advocate. Okay. Because after getting so many divorces for most of my clients, मेरे को ये पता था कि divorces क्यों हो रहे majorly because time नहीं मिल रहा है लोगों को एक दूसरे के साथ spend करने को. वो time office में अपने दूसरे friends और colleagues के साथ ज़्यादा spend कर रहे हैं and उसकी वजह से extra marital ज़्यादा होते थे and marriages were breaking down. That was the ground reality जो मैं daily देख रही थी अपने clients में. Then I made sure I don't want to face this problem. I want my husband and me should be working together and I love law. So I thought, I can only love a person who also has similar passion for the profession.
So I made sure, and then my parents looked for the profile who's a practicing advocate. He was the first one, and I don't know. I sometimes I feel it was a destiny because the minute I met him, without I being an advocate, I'm so suspicious and otherwise. For my marriage, I was not at all. It was a surrender. It was totally surrender in the first meeting. I felt like this is what I wanted all my life. Awkward होता है ना शुरू में? नहीं था. That was the Yeah, weird that thing. was the point. Awkward बिल्कुल नहीं. It felt like you have come home. This is what I wanted. This was. अरे वही ना, कभी-कभी तो तारीफ करती है. So can I start? Yeah. Okay. So I felt like meeting him within like a very brief period of time. Even the same day, I felt like it was what I wanted. I go by vibes, I go by my heart. I am a person who is ruled by moon, a Leo. So I felt like I've come home. That kind of feeling, and it was so much surety within my heart that I overlooked everything. I didn't ask him much. He was the one who was asking about everything. Where do you see yourself in 5 years? Very I was sure ना कि मैं क्या शादी तो करनी है, तो मैं क्या पहले ही पूछ लूँ. So we met, we had conversation, तो सारा सब कुछ उसमें हो ही गया था कि भाई क्या प्लान्स है, कैसे क्या है, और फिर पूरा तब तक कॉमन पे बात हो गई थी, तो एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में जानते थे, सब कुछ था, and then rest is history. वो बहुत suspicious वाला वो नहीं था, which I thought कि being an advocate I will interview my whatever my fiance, my husband, but वैसा हुआ नहीं. Maybe I still feel that was totally, I believe in this destiny thing. So I think I didn't have love marriage because I didn't meet him. If I would have met him before marriage, it would have been a love marriage for sure, not an arranged. But क्या बात है? आज तारीफ हो गई. Thanks to us. You asked about rapid fire, but my question will be something different. Okay. Tell 3 best thing about her and 2 things that you want if she can change. Best things. Best 3 things. Best 3 things. he has to think. सबसे पहले इनकी नॉलेज देखो सोचन गजब की है, और इनकी जो डिफरेंट काम ये कर लेती हैं. शी इज़ गुड एट वर्क, शी इज़ गुड एट होम, शी इज़ गुड एट किचन वर्क, शी इज़ अमेजिंग कुक. तो ये सब इनकी बेस्ट वो है. थर्ड, इनकी पॉजिटिवनेस, जो हर चीज़ को लेके बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहती है ना, एंड टुवर्ड्स अप्रोच, टुवर्ड्स एवरी, जो भी इनका अप्रोच रहता है बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता है. तो ये 3 चीज़ें इनमें, मतलब क्वालिटीज़ तो खूब, मतलब कूट के बनी हैं, ऐसी कोई बात नहीं. and 2 things that if she can change. थोड़ा सा जो क्लाइंट्स को काम को लेके जो स्ट्रेस फील करती है ना, और जिसमें उसमें कहीं ना कहीं वर्क को एम्बेजलमेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है वर्क, उस पे इनको फोकस करना चाहिए. सेकेंडली, ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए. कभी कभी मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो मैं बहुत थक जाता हूँ, तो ड्राइविंग सीखनी चाहिए इनको. अभी कह रही है सीखने, हालांकि चलाई है, ऐसी बात नहीं, चला लेती है, बट वो मेरा कॉन्फिडेंस जितना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्राइविंग क्योंकि हमारा तो कभी कभी ऐसे रहता है, कभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट भागना है, कभी जयपुर हाई कोर्ट भागना है, कभी भी गो ऑन ट्रिप्स बहुत ज्यादा, तो रोड ट्रिप्स आर बेस्ट फॉर अस, तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो ये चीज है.